Hello friends, welcome to my channel. My name is Ankit Chhabra and today I'm here to discuss an important topic of your class 12th, ray optics. And in this chapter, in this session, we are going to drive a relation for compound microscope. What is a compound microscope? When multiple lenses are used at the same time, which used to magnify the images to many times, maybe one time, two times, three times, as many times as per your requirement. So we are here to drive this relation for two convex lenses. One lens is known as objective lens, which has short focal length and smaller aperture, while the eyepiece, which is of larger focal length and larger aperture. The eyepiece is very close to an eye of an observer, that is why it is known as eyepiece, while the objective lens is very close to an object, that is why it is known as objective lens. So let's drive this relation. Before starting this relation or the derivation, one thing I want to mention here is we should know what the least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision is the minimum distance through which a normal human eye can identify an object very clearly, and that distance is 25 centimeters. So if an object is placed more than 25 centimeters, we can easily identify the object, but if it is placed very less than 25 centimeters, it is very difficult for us to identify the characteristic, the properties of an object. So let's start this session by drawing a convex lens, which is known as objective lens, and I want to make a real image. So I have to place an object away from the focus of this lens. I'm marking focus both sides. A ray which is parallel to the principal axis always pass through the focus, and a ray which is passing through the optical center forms a real image on the right side. Here I am marking with the object with AB and the image as A dash B dash. The distance from this lens, object distance, I am marking here with U naught or UO, and the image as V naught, and the height of the image is say H dash. ठीक है, अब एक लेंस और हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और राइट साइड पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैं एक लेंस और यूज कर रहा हूं, और इस लेंस की कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो फोकल लेंथ है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज the focal length of this lens is large, means it has not much has high magnifying power, same as that of an objective lens. इसकी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ जो है वो हाई है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर इसके कंपैरिजन में कम है, तो इसे हम लोग आई पीस कहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से राइट साइड से इस ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो इसकी इमेज मुझे कहाँ पे मिलनी चाहिए, इसी पॉइंट पे। अगर मैं इसकी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग अलग अलग पॉइंट पे, पर इसकी इमेज मैं इसी पॉइंट पे हम लोग क्यों लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब राइट साइड से इसको देखेंगे, राइट साइड से ये विजिबल होगी, तो अब इसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, इस ट्यूब के अंदर ही बननी चाहिए, मतलब ये जो आपका माइक्रोस्कोप है उसकी इमेज उसके अंदर ही रहनी चाहिए। सपोज अगर इसकी मैं रियल इमेज फॉर्म कर रहा हूँ और यहीं से देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ और इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही होगी वो राइट साइड में होगी, मतलब मेरे पीछे से फॉर्म होगी, तो पॉसिबल नहीं है उसको देखना। इन दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है, मैंने उस डिस्टेंस को मार्क कर देता हूं यहाँ पे। सपोज वो डिस्टेंस है L, दोनों लेंसेज, दिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। दो लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो L हमने मार्क किया यहाँ पे। अब मुझे इस आईपीस से इस ऑब्जेक्ट की, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का वर्क करने वाला है, इसने अपना रोल प्ले कर दिया, इसने उसको मैग्नीफाई किया इस लेंस को और उसकी इमेज फॉर्म कर दी A डैश B डैश। ये इमेज इरेक्ट इमेज है और ये इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, इसको मैंने मार्क किया है H डैश से। अब मुझे इसकी अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म करनी है तो मुझे इसके फोकस के बीच में उसको एडजस्ट करना होगा, तभी वो इमेज कहाँ पे बनेगी, लेफ्ट साइड पे फॉर्म होगी।
तो मैंने इसको मार्क कर रहा हूं, सपोज ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर और मैंने उसको मार्क किया, इसका फोकस मैंने यहाँ पे मार्क कर रहा हूं और इसको मार्क करके मैंने बोला कि सपोज ये है FE, क्योंकि इन दोनों के बीच में होगा तो मुझे जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो मैग्नीफाइड इमेज तो होगी पर वर्चुअल इमेज होगी, तो लेफ्ट साइड पे हमें मिलेगी। तो जरा इसको जरा देखते हैं, इस पॉइंट से इसकी जो इमेज होगी वो कैसे हो सकती है। तो मैंने यहां से एक पॉइंट मार्क किया, एक रे मार्क की। इस रे को मार्क करने के पीछे पर्पस है कि ये सारी जो रेज जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगी उसी पॉइंट पे मुझे उसकी इमेज फॉर्म होने वाली है। तो यहां पे ये इमेज कैसे होगी, तो मैंने इसके लिए, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको कोई भी रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इससे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो हमेशा कहां पास होती है, फोकस से। तो मैंने यहां पे फोकस मार्क करने से पहले यहां पे मैंने इसकी इमेज इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं उसको राइट साइड से देखता हूं तो ये इमेज कैसे होनी चाहिए, इसके जरूर फोकस से पास हो रही होगी। उसी को हमने बैक साइड में इसको ट्रेस किया। और भी सारी रेज को हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये रे जो यहाँ पे पास हो रही होगी, ये रे जो यहाँ पास हो रही होगी, इनको जरा अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट पे इसको भी बैक साइड पे ट्रेस कर सकते हैं। और जब हम इसको बैक साइड पे ट्रेस करेंगे तो वो भी इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मिलेगी। सेम सेकंड भी हम लोग मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट से ये पॉइंट। तो यहां पे ये सारी रेज कन्वर्ज हो रही हैं। जो रेज वहां पे इस डायरेक्शन में होगी और उसको बैक साइड में वर्चुअल इमेज को हमें ट्रेस करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड पे इसको ट्रेस किया। अब इसी इमेज को मैं फॉर्म कर रहा हूं। ये सारी रेज जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हुई, दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। This image is magnified to A dash B dash and again it is magnified to A double dash B double dash. The height of the object is H. Here it is H dash magnified image and finally we get the image H double dash on the left side. This image is virtual image. इसको आप साथ साथ मार्क करते जाओ। अगर आप मार्क करेंगे तो इजी लगेगा आपको, नहीं तो लास्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम से आपको नजर आएगा। तो सिंप्लीफाइड वे में हम इसका रे डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं और इसकी फाइनली इमेज कहां पे हुई है, लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो गई। इसको हम लोग कहां से देख रहे हैं, हम इस पॉइंट से देख रहे हैं। इसको मैंने यहां पे, तो ये हम इस पॉइंट से इसको देख रहे हैं। जरा देखें, इसमें मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट मार्किंग क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप हमेशा क्या लिखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ, हाई कन्वर्जिंग पावर, स्मॉल अपर्चर। आईपीस हाई फोकल लेंथ एंड हाई अपर्चर। दोनों का साइज में, दोनों में डिफरेंस है। जरा इसको मार्क करते हैं इसी पॉइंट पे। जरा देखें इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, इसको मैं U0 से डिनोट कर रहा हूं। ये आपका U0 हो गया। इसने जो इमेज फॉर्म की वो इमेज इस पॉइंट पे फॉर्म की है और इसको मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं V0 से। ये इमेज आपकी यहां बनी है और इसको मैंने मार्क किया है V0 से। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड मीन्स आईपीस। आईपीस को जब हम, ये आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं यहां पे अलग से डिनोट कर देता हूं। ये है सपोज आईपीस के लिए, तो यूई से मैं इसको डिनोट कर देता हूं। यहां पे हमने मार्क कर दिया इसको यूई से। फाइनली जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां पे हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये वाला पॉइंट है, ये डी मार्क कर देते हैं हम इसको यहां पे। इसे हम लोग डी कह देते हैं। अब फाइनली आपकी इमेज जो फॉर्म हुई है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसमें हमें एक चीज समझने की जरूरत है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है क्या चीज। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन आई उसको 25 सेंटीमीटर से अगर वो डिस्टेंस कम है तो वो क्लियरली नहीं देख पाती। उससे 25 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज को देख समझ सकते हो।
पर अगर आपको उसको कम से कम जो डिस्टेंस आपसे पूछा जाए, जिसे आप नियर पॉइंट भी कहते हैं, ये 25 सेंटीमीटर्स होता है एक नॉर्मल ह्यूमन आई से। तो हम लोग ये सारी जो इमेजेस फॉर्म करने वाले हैं वो इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म कर रहे हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म करने के पीछे रीजन ये है कि हम हमारा जो माइक्रोस्कोप है उसकी जो लेंथ है उसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली भी नजर आ जाए और बिना उसकी लेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज किए। तो हम उसको 25 सेंटीमीटर्स पे मार्क करते हैं हमेशा। तो ये इस लाइन से जो डिस्टेंस है जिसे हम लोग डी मार्क कर रहे हैं, ये वो डिस्टेंस है जो जिससे मुझे वो क्लियरली नजर आ सकती है, उसकी इमेज क्लियरली नजर आएगी, वो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। और ये ह्यूमन आई के लिए हम लोग कहते हैं 25 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस है। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसमें मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा अपॉन अल्फा दैट इज, मैं इसको लिख सकता हूं 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 अल्फा हमें मालूम है, हम जब भी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई भी रिलेशन फाइंड करते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो जो एंगल फॉर्म करेगा किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस से वो भी बहुत स्मॉल एंगल्स होंगे। तो हम 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा मैग्निफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ एंगल, इसे हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। लेंसेज के केस में यही मैग्निफिकेशन आपने एक और भी पढ़ा है, वो होता है m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। ये मैग्निफिकेशन भी आपने पढ़ा है, पर एंगल की टर्म्स में जब हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं तो बीटा अपॉन अल्फा लिखते हैं। अब 10 बीटा यहाँ पे क्या चीज है? 10 बीटा इज द इमेज फॉर्म्ड, 10 बीटा is the angle formed by an image, angle formed by an image when it is placed at least distance of distinct vision। means अब least distance of distinct vision पे मैं को अगर 10 बीटा मार्क करना है तो ये मेरा इमेज, इसके लिए ये इमेज है, इस डिस्टेंस का इससे जो एंगल होगा उसे हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं बीटा, और इसके लिए जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग मार्क कर रहे हैं यहाँ पे डी जिसको हमने मार्क किया है। मैं इसी ऑब्जेक्ट को बैक साइड में ट्रेस कर रहा हूँ, मींस यहाँ पे इसको इसी को एज इट इज मैं यहाँ पे बैक साइड में अगर ट्रेस करता हूँ, इसी डायग्राम के अंदर मैं इसको फॉर्म नहीं कर रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगेगा, नहीं तो मैं इसी को ऊपर के साइड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये वाला वो डिस्टेंस है जिसको मैंने यहाँ पे मार्क किया है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट है h। ये जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट को हम इमेजिन करेंगे तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज अल्फा। तो यहां से मैं इसको मार्क कर रहा हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इसको ज्वाइन कर देता हूं इससे। तो ये वाला एंगल अगर मैं यहां पे मार्क करता इसको, तो मैं इसको कहां पे फॉर्म करता, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज नोन एज अल्फा। और ये कहां पे फॉर्म हो रहा है, इस लेंस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो हम लोग जो दोनों एंगल ले रहे हैं वो दोनों एंगल कहां से मार्क कर रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब इसमें हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वैल्यूज 10 बीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब 10 बीटा यहाँ पे देखो, 10 बीटा का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है h डैश, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया h डैश अपॉन बेस। बेस यहाँ पे है b डैश e, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ b डैश e। 10 अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं अब 10 अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं, हाइट हमने एज इट इज इमेजिन की थी, ये h और ये डिस्टेंस d, तो इसको लिख सकते हैं हम h अपॉन d। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको h अपॉन d लिख दिया। तो ये मैग्निफिकेशन कितना हो गया, h डैश अपॉन b डैश e और ये d अपॉन h। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b डैश e को भी रिप्लेस कर सकते हैं, b डैश e इज ue, b डैश e इज ue। तो m इज इक्वल्स टू h डैश, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं दोनों की, h डैश अपॉन h, और यहाँ पे लिख देते हैं d अपॉन ue। अब ये दोनों d लेफ्ट साइड पे मार्क हो रहा है, लेफ्ट साइड पे, तो साइन कार्टेशियन के अकॉर्डिंग हम इसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर देते हैं। ue भी लेफ्ट साइड पे है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रहता है, माइनस साइन से आप डिनोट कर सकते हो और इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो आपका मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो हो गया h डैश अपॉन h और d अपॉन ue लिख सकते हैं।
एच डैश अपॉन एच तो आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किसके लिए बात करें हम, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज है एच डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये मैग्निफिकेशन होना चाहिए और डी अपॉन यूई मैग्निफिकेशन किसके लिए होना चाहिए, फिर आई पीस के लिए। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू एम नॉट और एम ई से भी हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन आपका फॉर्मूला हुआ और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके भी देखते हैं। एच डैश अपॉन एच मैग्निफिकेशन को अगर मैं किसी और फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं हम, एच डैश अपॉन एच इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस इज वी अपॉन यू। तो यहां पे मैं एम नॉट की जगह पे इसको रिप्लेस कर रहा हूं वी नॉट अपॉन यू नॉट से। वी नॉट अपॉन यू नॉट, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वी नॉट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यू नॉट। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन ये लिख सकते हैं हम। और डी अपॉन यूई को हमने सिंपल माइक्रोस्कोप जब डिस्कस किया था तो हमने एक रिलेशन फाइंड किया था डी अपॉन यूई के लिए। डी अपॉन यूई का रिलेशन था 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यहां पे मैं वो रिलेशन एज इट इज यहां पे यूज कर रहा हूं। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस हमने यूज किया था और वो लेंस हमारे आईज के पास में था, इसलिए हम लोग ये हमारे लिए क्या एक्ट कर रहा है, एक आईपीस की तरह। तो आईपीस के लिए जो आपने मैग्निफिकेशन फाइंड किया था उसी मैग्निफिकेशन को हम लोग यहाँ पे एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं m इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन यू नॉट। कुछ कंडीशंस के साथ अगर इसको हम लिखें तो वी नॉट को हम यहाँ पे रिप्लेस किससे कर सकते हैं, वी नॉट। अगर आप एक्चुअल जब इस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वी नॉट, ये वी नॉट इसके बहुत क्लोज होता है। वर्चुअल इमेज बनानी है ना हमें, तो उसके लिए ये डिस्टेंस, ये जो वी नॉट है, ये आपके इसने जो इमेज फॉर्म की वो फोकस से बहुत पास में होता है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ होता है। तो ये इस तरफ हमने इसको शिफ्ट कर दिया। ये जितना ज्यादा आप इसको शिफ्ट करेंगे आपको इसकी वर्चुअल इमेज और ज्यादा मैग्नीफाइड मिलने वाली है। तो इसको मैं और ज्यादा इसको मैंने शिफ्ट किया तो ऑलमोस्ट इसकी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वलेंट हो जाती है, ये जो वी नॉट है वो इस लेंस तक हम इमेजिन करते हैं कि वो बहुत क्लोज है। तो मैं यहाँ पे वी नॉट को किससे डिनोट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे वी नॉट को डिनोट कर दिया है लेंथ ऑफ द ट्यूब से। वी नॉट को डिनोट कर दिया लेंथ ऑफ द ट्यूब से, ये वी नॉट को लेंथ ऑफ द ट्यूब से कि अप्रोक्सीमेटली ये लेंथ किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली लेंथ है एल के इक्वल। यू नॉट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अब देखो यू नॉट यहाँ पे क्या है, यू नॉट ये डिस्टेंस था। तो मुझे अगर सपोज माइक्रोस्कोप की लेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना तो मुझे इसकी इमेज कैसे चाहिए, रियल इमेज चाहिए। रियल इमेज होगी तभी वो यहाँ फॉर्म करेगा और उसके लिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मुझे ये राइट साइड पे शिफ्ट करने के लिए फोकस पे रखती है, इन्फिनिटी पे बन जाती है ये इमेज। तो मैंने उसको जस्ट पीछे की तरफ रखा है। जस्ट पीछे का मतलब कि ऑलमोस्ट यू नॉट किसके इक्वल है, इसके फोकल लेंथ के इक्वल। तो इसकी फोकल लेंथ के इक्वल मतलब यू नॉट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होना चाहिए, उसकी फोकल लेंथ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस ऑफ एफ नॉट से डिनोट कर देता हूं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। तो ये रिलेशन फाइनली एल अपॉन माइनस ऑफ एफ नॉट और आप लिख सकते हो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये रिलेशन हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो उससे पहले इस वीडियो को पॉज करें, पॉज करके एक एक बार इसको डायग्राम को पूरे कंसेप्ट के साथ इसको बना के देखें। आपको ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड लगेगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। साथ साथ रे डायग्राम अगर आप बना के देखेंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम एज इट इज आपके लिए अभी भी रहने वाली है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में कुछ लर्निंग अगर होती है आपको तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।